नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल इवेंट्स। आपके साथ मैं हूं प्रांजलि सिंह। चलिए बढ़ते हैं खबरों की तरफ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज दिल्ली में कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के नए भवन कौशल भवन का उद्घाटन किया है। राष्ट्रपति ने इस मौके पर प्रधानमंत्री विश्वकर्मा, प्रधानमंत्री जनमन आजीविका संवर्धन के लिए कौशल प्राप्ति और ज्ञान जागरूकता, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना जैसी सरकार की कई पहलों पर लाभार्थियों से बातचीत की और उन्होंने जो स्टॉल लगाया था उसका जायजा भी राष्ट्रपति ने लिया है। कौशल भवन की आधारशिला मार्च 2019 में रखी गई थी। यह भवन मंत्रालय के साथ साथ इससे संबद्ध संगठनों, प्रशिक्षण महानिदेशालय, व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण के लिए राष्ट्रीय परिषद तथा राष्ट्रीय कौशल विकास निगम के लिए कार्यालय की जगह प्रदान करेगा। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ भारतीय गणतंत्र के 75वें वर्ष के उपलक्ष्य में आज दिल्ली में साल भर चलने वाले अखिल भारतीय हमारा संविधान हमारा सम्मान अभियान का उन्होंने शुभारंभ किया। इस मौके पर उपराष्ट्रपति ने कहा कि राष्ट्र उन नायकों को याद कर रहा है जिन्हें भुला दिया गया था। उन्होंने कहा कि देशवासियों ने भारत को नए रूप में देखा है। उपराष्ट्रपति ने अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा समारोह को एक ऐतिहासिक क्षण बताया। And we had on 22nd January 2024 tryst with divinity. The day is east in the history of this country for several reasons. The consecration ceremony of Ramlalla in Ayodhya Dham on that day marks three things fundamentally. One, this country believes in rule of law. The passage to construction of Ram Mandir took very long, was hurtful to the sentiments of millions and millions of people in the country and many outside. Every day was very painful. Still, in this land of Gandhi and Buddha, in this land which has civilizational depth of 5,000 years, it was in accordance with law. And that was a great achievement. Second, it reflected the will of the framers of Indian Constitution. I am pained and I will appeal to the Honorable Law Minister. Our young boys and girls are not exposed to the Constitution which has been signed by the members of the Constituent Assembly. That document, Honorable Minister, you will find is a different one. That document contains 22 miniatures. They are positioned thoughtfully above each part of the Indian Constitution. When you had the occasion to see a small film indicating those things, I saw what was there in the pillar at Somnath. It was there. If we look at the first part, second part, it reflects Gurukul and our ancient civilization. आपातकाल लागू करने को इतिहास का सबसे काला दौर करार देते हुए उपराष्ट्रपति ने आह्वान किया कि वे उस दौर से सीखे सबक के साथ आगे बढ़े। उपराष्ट्रपति ने मौलिक कर्तव्यों को संविधान का महत्वपूर्ण हिस्सा बताया। We need to be extremely alert, apart from our fundamental rights, as to our fundamental duties. It's a time for us that we must turn out to be very good citizens. And from that perspective, I will make an appeal. Time is a constraint. I'll make an appeal. An individual. What can an individual do? An individual must immediately go to a new part which was added, Part 4, capital A, Fundamental Duties. Read them, 11 of them. Initially there were 10, one was added later on. When you will read those 11 fundamental duties, you will find these are fundamental to our daily life.
It takes no expense. We can do it. उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा कि पूरा विश्व भारत की तरफ देख रहा है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। उन्होंने उम्मीद जताई है कि जल्द ही भारत तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भी बन जाएगी। We must always take pride in being Indians. भारतीयता हमारी पहचान है। इस महान देश भारत के हम नागरिक हैं। इसकी अप्रत्याशित, अकल्पनीय प्रगति से हम अभिभूत हैं। दुनिया अचंभित है। भारत का लोहा दुनिया मान चुकी है। दुनिया की संस्थाएं क्या कहती हैं भारत के बारे में कि आज के समय दुनिया में भारत सबसे तेज गति से बढ़ने वाली आर्थिक शक्ति है। We today, friends, are the 5th largest global economy. We have marched ahead of Canada, UK, France. In 2 or 3 years, we'll be marching ahead of Germany and Japan. We'll be the 3rd largest global economy. We can't stop at that. So there was a time in our illustrious past when we were at peak. We have to reach that peak. And the Prime Minister, with his vision, is working in overdrive to secure that Bharat at 2047 becomes a developed nation, a global power. Because our Bharat, as is the spirit and essence of our constitution, it stands for peace, harmony, stability. The only nation perhaps in the world that has never engaged in frontier expansions. भारत की विदेश नीति पर बोलते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि आज भारत की बात हर जगह सुनी जाती है। Never believed it. It is a time, for the first time in our history, that the world recognizes in diplomacy power of Bharat. We are guided by one interest of the nation and welfare of the humanity. And that is why the entire world acknowledged the excellent outcome of G20, which was a global high benchmark in our soft diplomatic power. ये मेरे कहने का मतलब यह है कि हमारे संविधान ने हमें सब कुछ दिया है। यदि 3 संस्थाएं, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका, अपने दायरे में रहकर मर्यादित आचरण कर आगे बढ़ेंगे तो भारतीय लोग इतने प्रतिभाशाली हैं कि कुछ भी उनके लिए असंभव नहीं है। I appeal from this platform that we are lucky to have highest brains heading these organizations. The executive is being led by the Prime Minister, a man who is a visionary, who thinks big, achieves with expedition, achieves for one and all, achieves at a dimension which we never imagined. उपराष्ट्रपति ने सदन की कार्यवाही में होने वाली अवरोध पर चिंता जताया। उन्होंने कहा कि विधायिका में व्यवधान और अशांति की जगह बहस और बातचीत होनी चाहिए। How efficient your legislators are, boys and girls, is in your hands. You have to take a call. Would you want parliament or assemblies to be dysfunctional? Would you want them to be ravaged by disruptions, disturbances? You certainly would want. There should be debate, dialogue. We had a great legislation. Earlier we used to have Dand Vidhan. Now we have Nyay Vidhan. But to my utter pain, the legal luminaries, the legal eagles that dominate the legal firmament, none came forward in Rajya Sabha to make a contribution. When you have an opportunity, a historic opportunity, when epochal legal mechanism is being developed, we are being unshackled from colonial regime. Why did you not make your input available?
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज दिल्ली में अपने निवास पर गणतंत्र दिवस की झांकियों के कलाकारों, राष्ट्रीय कैडेट कोर के कैडेट्स और राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयंसेवकों से मुलाकात की है। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हमारा संकल्प है कि अमृत पीढ़ी का हर सपना पूरा हो, आपके सामने अवसरों की भरमार हो, अमृत पीढ़ी के रास्ते हर बाधा दूर हो। उन्होंने कहा कि अमृतकाल की इस यात्रा में आप हमेशा याद रखिएगा कि जो करना है वो देश के लिए करना है। प्रधानमंत्री ने कहा कि बेटियों में समाज और देश को बेहतर बनाने की क्षमता होती है। उन्होंने कहा कि एनसीसी, एनएसएस या कल्चरल कैंप जैसी संस्थाएं युवाओं को समाज और नागरिक कर्तव्यों के प्रति जागरूक करती हैं। इस कड़ी में देश में एक और संगठन का निर्माण किया गया है और इस संगठन का नाम है माय भारत। साथियों, मैं भी आपकी तरह एनसीसी में रहा हूं, एनसीसी से ही निकला हूं। आपके बीच मैं उसी रास्ते से आया हूं। मैं जानता हूं कि एनसीसी, एनएसएस या कल्चरल कैंप जैसी संस्थाएं युवाओं को समाज और नागरिक कर्तव्यों के प्रति जागरूक बनाती है। इस कड़ी में देश में एक और संगठन का निर्माण किया गया है। इस संगठन का नाम है माय युवा भारत। मैं आपसे कहूंगा कि आप सभी माय भारत वॉलंटियर्स के रूप में खुद को रजिस्टर करें। माय भारत की वेबसाइट पर ऑनलाइन विजिट करें। साथियों, गणतंत्र दिवस के इस समारोह के दौरान आपको लगातार ऐसे कार्यक्रमों में जाने का अवसर मिलने वाला है। परेड में भागीदारी के अलावा आप सभी कई ऐतिहासिक स्थानों पर भी जाएंगे और कई एक्सपर्ट से भी मिलेंगे। यह एक ऐसा अनुभव होगा जो आपको पूरे जीवन याद रहेगा। हर वर्ष जब भी आप गणतंत्र दिवस की परेड देखेंगे, आपको ये दिन जरूर याद आएंगे। ये भी याद आएगा कि मैंने आपसे कुछ बातें कही थी। इसलिए मेरा एक काम जरूर करिएगा। करेंगे? जरा हाथ ऊपर करके बताइए। बेटियों की आवाज तेज है, बेटों की कम है। करेंगे? अब बराबर है। अपने अनुभव को कहीं किसी डायरी में जरूर लिखकर रख लीजिएगा। और दूसरा, गणतंत्र दिवस से आपने क्या सीखा, ये मुझे आप नमो ऐप पर भी लिखकर या वीडियो रिकॉर्ड करके भेजिएगा। भेजेंगे? आवाज दब गई। नमो ऐप के माध्यम से आज की युवा पीढ़ी मुझसे लगातार जुड़ी रह सकती है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला राजस्थान के दौरे पर हैं, जहां आज उन्होंने अपने संसदीय क्षेत्र कोटा के बड़ौद गांव में टिफिन विथ दीदी कार्यक्रम में स्वयं सहायता समूह से जुड़ी बहनों से बातचीत की। इस मौके पर लोकसभा अध्यक्ष ने आश्वस्त किया कि कौशल विकास के जरिए उनके काम को नई ऊंचाइयों तक वो लेकर जाएंगे। हर गांव में एक उत्पाद को प्रोत्साहित करके उनके उत्पाद के लिए गांव से राष्ट्रीय स्तर तक बाजार तलाशने में मदद करेंगे। हमारी यह आत्मनिर्भर बहनें ही विकसित भारत के संकल्प की सिद्धि करेंगी। आत्मनिर्भर भारत, आर्थिक स्वावलंबन का भारत के सपने को पूरा करने के लिए अपना लक्ष्य तय कर लिया। मुझे खुशी है कि भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि
मेरी देश की करोड़ों दीदियों को आने वाले समय में हम लखपति बनाएंगे, ड्रोन दीदी के रूप में, अन्य रोजगार से, ताकि हमारी दीदियां आर्थिक स्वावलंबन और आर्थिक आत्मनिर्भर हो सके। मुझे खुशी है जितनी दीदियों ने अपनी राजीविका से जुड़ी कहानियां बताने का और अपने अनुभव यहां पर बताए, और उसके पहले नहीं जुड़ी थी उसके पहले की जिंदगियों को भी बताया। मैं कई समूह की महिलाओं से मिला हूं और मुझे जब भी कोई दीदियां मिली है उन्होंने एक ही बात कही है। आज के लिए नेशनल इवेंट्स में इतना ही। आप देखते रहे संसद टीवी। नमस्कार।